Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Cantab Publishers video lessons. Before starting the lesson, dear students, you must have with you class 3 English textbook, workbook and resource pack. Resource pack is for parents and teachers guidance. You can also download it from Cantab Publishers official website. We are going to start our lesson from unit 7, Student of the Year, and our topic is verb. SLOs of this lesson are use correct verbs. First, we will discuss what is an action verb. A verb is one of the most important parts of the sentence. It tells the subject, action, events or state of being. It is always found in the predicate of a sentence. A verb that shows action is called an action verb. For example, walk, talk, teach, write. These are all action verb. For example, I like to eat mango. In this sentence, the eat is what? Yes, it's an action. And what is a state of or being something? Let me tell you. Verb is of two types. Action and state. For example, I am a teacher. अब इसमें आपका स्टेट वर्ब क्या होगा? am. स्टेट वर्ब क्या होगा आपका? am. You are a student. इसमें आपका स्टेट वर्ब होगा are. इसी तरह आपका is, was, वर्ब भी आपका क्या है? स्टेट वर्ब है जो कि बताता है स्टेट ऑफ बीइंग, किसी चीज का होना या किसी स्टेट के बारे में बताता है. और एक्शन वर्ब आपके सारे ये हैं: वॉक, टॉक, टीच, राइट, ईट, लिसन, hear, etc. We also discussed the verbs in your previous class or lessons too in detail with examples. The words are action verbs like coughed, rained, swallowed, sang, awake, ride. All these are verb. Can you find the action verb in each sentence? The girls danced in the recital. अब क्या है? Danced क्या है? Yes, it's an action. Our mailman drove a funny car last week. Drove is a verb here. His teacher wrote the answers on the board. Wrote is an action here. Alice worked on her homework last night. Worked is an action. So these are all action which are done by the nouns here. First we will discuss the present verbs. An action verb that describes an action that is happening now is called a present tense verb. For example, the birds flies through the sky. Flies is a present tense verb because it is happening right now. Flies क्या है? जो काम अभी हो रहा हो प्रेजेंट सिचुएशन में या डेली रूटीन में होता हो वो प्रेजेंट टेंस में आता है. प्रेजेंट टेंस में आता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग. The thing is, the teaching is happening right now. That's why we have added ing into word teach. Yeah, I teach class 3. अब ये क्या है? ये डेली रूटीन में आपका काम होता है. ये डेली होता है. जो चीज़ें डेली रूटीन में हो, जो काम जो डेली रूटीन का पार्ट हो या यूनिवर्सल फैक्ट हो और जो काम अभी प्रेजेंटली हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस में आते हैं. आईएनजी आप उस वक्त लगाएंगे जब आपका वर्ब कंटिन्यू हो, एक्शन कंटिन्यू हो, खत्म ना हुआ हो. और सिंपल आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जब लगाएंगे जब आपका काम डेली रूटीन में होता हो. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक चॉकलेट. ये आपका क्या है? हैबिट है. हैबिट भी इसमें आता है. आई लाइक क्या आपकी हैबिट है? आई लाइक चॉकलेट. इसके साथ हम एस नहीं लगाएंगे. नो. ही, शी, एक और किसी भी नेम के साथ आपका
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका एस का एडिशन होगा और आई, यू, वी और दे के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ऐड नहीं करेंगे। अगर इसकी जगह होता कि शी, तो हम यहां पर एस का एडिशन करते, शी लाइक्स चॉकलेट, लेकिन यहां पर क्या है, आई है, तो हम एस का एडिशन नहीं करेंगे। किसी भी वर्ब की पहली फॉर्म जो है आपने इसी तरह लगानी। अगर ही, शी और इट और नेम है, इट आपका यूज होगा एनिमल और थिंग्स के लिए, ये आपके प्रोनाउंस हैं। या कोई नेम आ जाए जैसे कि सना, सना लाइक्स चॉकलेट, तो आपने एस का एडिशन करना है। कोई भी वर्ब हो उसके साथ आपने इसी तरह इन रूल्स को माइंड में रखते हुए एडिशन और डिडक्शन करनी है। यूनिवर्सल फैक्ट्स में आपका क्या आ जाएगा, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, इट सेट्स इन द वेस्ट। क्या यूनिवर्सल फैक्ट, इसको हम चेंज नहीं करते। प्रेजेंट टेंस वर्ब्स आर मेनी प्रेजेंट टेंस वर्ब्स एंड विद एस बट सम एंड विद es और is, like sleeps, splashes, cries. अगर आपका ही, शी, इट या कोई नेम हो, वरना आई, यू, वी दे के साथ आप एस का एडिशन नहीं करेंगे, es और ies करेंगे। एंड व्हाट इज अ पास्ट वर्ब? Verbs which tell about action which happened some time ago are past tense verbs. वो काम जो कुछ वक्त पहले या कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले हो चुका है, वो क्या कहलाता है, पास्ट टेंस कहलाता है। द डॉग वॉन्टेड अ बोन, डॉग को क्या चाहिए थी, हड्डी चाहिए थी। वॉन्टेड इज अ पास्ट टेंस वर्ब बिकॉज द एक्शन हैज ऑलरेडी हैपेंड, जो कि एक्शन पास्ट में हो चुका है, वो आपकी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। पास्ट टेंस वर्ब्स आर many past tense verbs end with ed but some end with d or ied, like clapped, ed का एडिशन है tried, played, I played football, yesterday I was tired in the morning, मैं थका हुआ था मॉर्निंग में। I clapped for my team. ये क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन इसमें इरेगुलर रेगुलर वर्ब्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका इरेगुलर वर्ब्स क्या होगा, जिसमें ईडी का एडिशन नहीं होगा सेकेंड फॉर्म में। ईट आपकी फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है एट, तो नो एडिशन ऑफ ईडी और आईईडी और डी। गो आपकी फर्स्ट फॉर्म है तो उसकी सेकंड फॉर्म है वेंट। सिंपल इज दैट। दिस इज योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 47. वी हैव नाउ लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट tense in detail with examples, so it will be very easy for you to do this. We have a box here, the word bank here. You have to choose one option for each sentence and complete the sentence. Fill in the blanks with the correct form of verb. I care of others. Take or takes? I है इधर, what I have told you. Present form of verb है, मैं ख्याल रखता हूँ, एक हैबिट है, एक रूटीन है, मैं दूसरों का ख्याल रखता हूँ, इट्स अ हैबिट हियर। तो आई के साथ आपका टेक आएगा। अगर यहां पर ही, शी और इट होता तो टेक्स आता। बी शहीद अ प्राइज, शहीद विन अ प्राइज। अब शहीद ने क्या है, इनाम जीता है, प्राइज जीता है। अगर रूटीन में जीता है तो यहां पर विंस का ऑप्शन आता, क्योंकि इट्स अ नेम हियर, सो इट इज इन द पास्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी जो कि है वॉन। एग्जैक्टली। See our computer section 20 computers. Has or have, as I told you in your previous lesson, has for the he, she, it and for person, and have for the plural and
for the I, you, we, they. So our क्या है? Plural है, ज्यादा लोग हैं. Our computer section, अब ये क्या है? कंप्यूटर सेक्शन की बात हो रही है. हमने our को नहीं देखना, कंप्यूटर सेक्शन को देखना है. कंप्यूटर सेक्शन क्या है? एक है, सिंगुलर है. दिस इज आवर कंप्यूटर सेक्शन 20 कंप्यूटर्स. अब 20 कंप्यूटर्स हैं यहां पर, प्लूरल है. एज आई टोल्ड यू इन योर प्रीवियस लेसन्स, हैज, ही, शी, इट के लिए यूज होगा और हैव आपके प्लूरल नाउन्स के लिए, और आई, यू, वी, दे के साथ. तो 20 कंप्यूटर्स हैं, प्लूरल है, तो यहां पर आएगा हैव. D, my school far away from my home. मेरा स्कूल मेरे घर से दूर है. Is or has? Exactly, is. E, we in our school ground. हम अपने स्कूल ग्राउंड में खेलते हैं. It's a routine and we have we here. So what will be the right option? Yes, play. अगर यहाँ ही शीट होता तो सिर्फ तो plays आता. Safety, a good practice. Safety, it's one. Safety is a good practice. The nurse, the patients. अब nurse है, noun है, इधर name है किसी specific person का. Helps or helping. The nurse helping the patient or nurse helps the patient. Nurse जो है उसका काम ही है कि वो help करती है patients की, तो यहाँ पर आएगा helps. H, Kiran, her parents. Kiran is a name and it's her habit. She obeys her parents. Yeah, obeys. The I, our school van, us home. हमारी स्कूल वैन हमें घर लाकर आती है. Brings or bring, yeah, specific thing here. So our school van has brings us home. This is your home task from workbook. For each sentence from here, you have to choose the right option for each sentence. Just first read the sentence and choose the right option for it. This is section 2. This is also your home task. Write the past form of verbs by adding ed at the end. Request your elder sister to help you. In form of verb में जो कि present form of verb है, इसमें आपने just simply ed का addition करना है to make it past form of verb here in this column. And section 3, write a short paragraph about your grandmother. अपनी grandmother, दादी अम्मा के बारे में आपने 5 sentences लिखने हैं simple, और जो कि होंगे present form में. Remember it. वो कैसी दिखती हैं, वो क्या कहती हैं, आपको उनकी कौन सी बातें पसंद हैं. You can write about this. And this is your home task from textbook. आपने ये पेज रीड करना है यूनिट नंबर 7 का, और इसमें से फर्स्ट फॉर्म ऑफ एंड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आइडेंटिफाई करनी है और उसको अंडरलाइन करना है. टिल नेक्स्ट लेसन, अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू.